Hello and welcome back to my channel, dear students. Simplified Maths में we are continuing with chapter 3, Maths part 5. Okay. Now in this particular lecture today, we are going to continue with exercise 3.2. Okay. Last lecture में हमने क्या किया था दोस्तों? We have seen the matrix multiplication. याद है ना? Matrix multiplication and their properties. All that we have seen with an example. Okay. Now, that matrix multiplication, as I told, is very important for this chapter because if you don't know, अगर आपको ये matrix multiplication नहीं आता है ना, okay, then you will not be able to do any further problems of this chapter. So be careful if you are not clear in the how to multiply two matrix, then please do it. Watch the video again and just go through it properly. Now, before I go for the exercise 3.2, just one important note I want to give. Okay, that important note is if A is a square matrix, okay, for any square matrix, you know, square matrix means what? N cross N means 2 by 2, 3 by 3, like that. So for square matrix A, okay, there is a result that A square is equal to A into A, like this. Okay, and if you want to find A cube, then you can take A square into A. मतलब अगर आपको A cube find करना है, you want to obtain A cube, then first you have to do A square. A square करने के बाद फिर से उसके साथ multiply A करो तो वो A cube. So it is just like an this simple algebra, you know. But this is not a simple multiplication. This is a matrix multiplication. Be careful. A into A, so there are two matrix A A. ये बहुत important चीज है, right? So ये एक important note हो गई हमारी. Before I go for sums of the exercise 3.2. Okay. Now all of you, please you have to open the textbook and exercise 3.2, page number 80. Right? Last time I told you that there are few sums which are the matrix multiplication, but up to sum number 1 to 12, there are only few questions based on the multiplication. So that if you say question number 1, just look at question number 1. At question number 1, there are question number 4 and 5. First question में 4 और 5 क्या फाइंड करना है? 4 में ए बी फाइंड करना है और 5 नंबर में आप देखो तो वी हैव टू फाइंड आउट बी ए बी एंड 5 नंबर वी हैव टू फाइंड आउट बी ए. ओके, सो दीज टू थिंग्स राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग इट डियर चिल्ड्रन. ये आप होमवर्क में, अगर लास्ट वाला लेक्चर मेरा याद है ना, तो आप इसको ट्राई करना. ए बी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी, बी ए मीन्स बी मल्टीप्लाइड बाय ए. और एक चीज आप ऑब्जर्व करना. क्या ऑब्जर्व करेंगे? नॉन कॉम्यूटिविटी ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. आप देखोगे ए मल्टीप्लाइड बाय बी, बी मल्टीप्लाइड बाय ए, आंसर विल नॉट बी सेम. आंसर जो है वो अलग अलग मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे. तो लास्ट लेक्चर में हमने वो भी डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव. ओके, राइट. अभी इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा बाकी है उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, बट आई विल डू जस्ट वन ऑफ इट. मैं खाली उसमें से एक ही करूंगा. हाँ, ठीक है. सपोज मैं कोई भी एक ले लेता. देयर आर टोटल 6 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन 3. आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द 6. मैं उसमें से कोई एक आध ले रहा हूँ. ध्यान से देखोगे आप. सपोज कि भाई मैंने उसमें से 6 नंबर, थर्ड का नंबर 6. अब मल्टीप्लिकेशन देखो किस तरह से है. फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3 -1 3 -1 0 2. Okay, and second one
सेकंड मैट्रिक्स इज 2 -3 1 0 3 1। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो लास्ट टाइम का हमारा लेक्चर याद होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, यू नो दैट एरो दिस वे and downwards. Every time when you do the sum, please don't show this, don't draw this type of arrow. तो हम क्यों बता रहे हैं? जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी आर लर्निंग। तो हमको पता है कि ये डायरेक्शन में हमको हाँ उसका प्रोसीजर मतलब स्टेप्स जो है क्या था, याद है ना कि इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस, ये एलिमेंट की क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करना है, याद है ना लास्ट लेक्चर, फिर से एक बार बोल रहा हूं, वी हैव टू टेक द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। डू यू रिकॉल दिस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो? हाँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स 3 into 2, 3 into 2, ठीक है। अभी मैंने बोला था लास्ट कि यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली, 3 2 6 प्लस, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय +1, -1 into 1, so that is -1 प्लस 3 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम द पोजीशन, ये पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9, ये हो गया। Now where is my pen? My pen is at the second position. Which is the position of this element? First row second column. तो देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये रही, ये सेकंड कॉलम, ये हमारी सेकंड, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है, सो वो हो जाएगा -9, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 3 3 ठीक है, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, फिर से प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 3। ये कौन सा आ गया हमारा, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया क्लियर। अब अगर मैं मेरी पेन यहाँ पे ले जाता हूँ, दिस आई शोड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस वन, ये पोजीशन कौन सी है दोस्तों, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो इज देयर बट थर्ड कॉलम इज नॉट देयर, यहाँ पे थर्ड कॉलम है ही नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली पेन डाउन, एंड पेन डाउन करके हम कहाँ जाएंगे, सेकंड रो में पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये पोजीशन कौन सी आई दोस्तों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया, दिस इज अ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, so -1 multiplied by 2, so it is -2, ठीक है, -1 multiplied by 2 -2 प्लस 0 multiplied by 1, 0 multiplied by 1, so 1 plus 2 3s are 2 multiplied by 3, so 6, second row first column। Now where is my pen? Now my pen is second row second column, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा अभी, -1 मल्टी -3, -1 into -3, it will be +3, माइनस माइनस प्लस, नो, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो वो तो 0 ही होगा, देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 2 1s are 2, ठीक है। अभी देखो आगे नहीं जा सकूंगी, यहाँ पे अगर मैं गया, वो हो गई सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो तो है, थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, ठीक है। अभी आप नीचे जाओगे तो भी गड़बड़, अगर मैं सपोज मैंने पेन यहाँ पे लाया, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, ये पोजीशन कौन सी हुई, ये वो आ गई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अभी क्या गड़बड़ हुआ दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, बट देयर इज नो थर्ड रो, थर्ड रो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम इज देयर बट थर्ड रो तो है ही नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पर भी कुछ नहीं आ सकता। तो अगर आप ऐसे सब तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है रिजल्टेंट क्या आ गया, ये हमारा खत्म हो गया, ये आंसर फिनिश। ठीक है ना। अब आगे कोई भी एलिमेंट बाकी है नहीं, बस दैट्स ऑल। अभी जो भी है हमारा आंसर। ठीक है। सो 9 + 6 15 - 1 14 -9 + 3 so -6 then 7 - 2 so 5 3 + 2 also 5 so ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दैट्स ऑल, सिंपल। सो दिस इज व्हाट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, राइट। अभी मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा इसी एक्सरसाइज में। टर्न द पेज ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82। okay, as I told you that 13 onwards, but each sum is based on the product, means multiplication of two matrix। उसमें से आप देखो 13 वाला देखो, मैं उसमें आपको हिंट दे देता हूँ। fx आपको u दिया हुआ है, fx मतलब एक्चुअली एक फंक्शन है, बट फंक्शन इज गिवन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। fx मतलब फंक्शन हुआ ना। see they are using capital F, the reason is as I told in the beginning of the chapter that matrix is always denoted by capital alphabet। तो कैपिटल अल्फाबेट की वजह से उसको स्मॉल f नहीं लिया, क्या लिया है, कैपिटल F। अब देखो उसमें एलिमेंट इस तरह से दिए हुए हैं, cos x sin x 0 then sin x cos x 0 and 0 0 1। ये हमारा fx गिवन। ठीक है, गिवन। ओके, now the question is show that means prove that। okay, we have to prove that। ये हमको प्रूव दैट क्वेश्चन है। आप देखो टेक्स्ट बुक में, fx multiplied by fy, fx into fy is equal to f of x। दिस इज टू शो, ये हमको शो करना है। ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। अब देखो इसमें सपोज मैं LHS से स्टार्ट करूं। व्हाट इज LHS? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल fx into fy। ठीक है, fx इज व्हाट, cos x minus sin x to sin x cos x 0 0 0 1 multiplied by fy। you mean by जो है x, replace x with y, with y minus sin y 0। ठीक है, sin y cos x 0 0 0 1। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों? अगर समझ नहीं आए तो प्लीज, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके, और यू कैन आस्क मी इन माय पर्सनल नंबर ऑल्सो, व्हाट्सएप। ठीक है, अच्छा अभी व्हाट वी शैल डू, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अभी मैं आई एम नॉट डूइंग दैट एरो। इफ यू आर क्लियर व्हाट टू डू नाउ, व्हिच इज दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, first row first column, sum of the multiplication or a product, okay, of the corresponding element, cos x into cos y, first row first column, cos x into cos y, cos x cos y minus sin x into sin y। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस sin x into sin y and 0 into 0, so that is 0 plus 0। तो वो एक्चुअली लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी अभी लिख रहा हूं मैं। ये हो गई फर्स्ट एलिमेंट हमारा।
ठीक है, राइट। अभी व्हेन आई कम टू दिस पॉइंट, तो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, cos x इंटू माइनस साइन वाई, है ना, cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो इट विल बी माइनस cos x माइनस cos x इंटू माइनस, ये कराऊंगा माइनस cos x इंटू साइन वाई, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, तो क्या होगा, अभी मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज वो थर्ड में भी लिखना है ना, सो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस फर्स्ट टू सेकंड कॉलम है, राइट। ये मेरा एक मिनट, सॉरी, पार्डन पार्डन पार्डन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x, वो y हो गया ना, सॉरी, हाँ, पार्डन एक्सट्रीमली, बिकॉज हमने एफ वाई किया ना दोस्तों, तो ये सारे y हो गए। मेरे दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, मैंने सोचा ये साइन एक्स कॉस एक्स कहाँ से आया, अभी ट्रिग्नोमेट्री एडिशन फॉर्मूला सब आ रही है, देखो ट्रिग्नोमेट्री है, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, और जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो वो हो जाएगा जीरो, बराबर। बाद में ये पोजीशन कौन सी आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, तो देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। आपको कुछ याद आ रहा है, 11 स्टैंडर्ड एडिशन फॉर्मूलाज, फैक्टर फॉर्मूलाज 11 में पढ़े हो ना, तो देखो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला ही बनी है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये एक एडिशन फॉर्मूला ही है, ये भी हुआ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको वो एडिशन फॉर्मूला यूज करनी है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इमीडिएटली 11 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक निकालो, अपना मटेरियल, और उसमें देखो ये सब फॉर्मूला। आई अगेन वार्न यू, ओके, वार्निंग यू, कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है 11 की, तो ओके, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप सारी की सारी फॉर्मूला 10-10 बार लिख के भी उसको बाय हार्ट करो, याद करो, कंपलसरी, नो वे बेटा, ओके। अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला इतनी जगह पे यूज होगी आप सोच भी नहीं सकते, हाँ। और एक पूरा लिस्ट बना के रखो एक पेज पर, और वो लिस्ट अपने सामने रखो, कभी भी पढ़ते हो क्योंकि कहीं भी जरूरत पड़ती है, हाँ। सो ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अभी लास्ट में जीरो जीरो, तो वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिखते हैं। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, so sin x into minus sin y, so it will be minus sin x sin y and plus cos x into cos y, cos x cos y, ठीक है, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, वो तो जीरो है, ठीक है। अभी आएगी थर्ड रो, थर्ड रो, बराबर ना, और एक मिनट, ये कौन सा आया हमारा, जस्ट होल्ड ऑन, ये पोजीशन देखनी है ना हमको, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जीरो जीरो जीरो, हाँ जीरो, ठीक। कभी भी डाउट हो ना तो आगे जाने से पहले थोड़ा चेक कर ले। तो प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे गलती हो गई और हमारा ध्यान नहीं हुआ, तो आगे जाके गलती होगी ना, फिर पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे गलती हुई है ना, ओके। और फिर वो आप पकड़ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या है, दैट इज व्हाई पूरा शुरू से देखना पड़ेगा, दैट। अभी यहाँ पे पोजीशन कौन सी आ गई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बरोबर। तो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो प्लस जीरो, वन इंटू जीरो, तो सब जीरो ही आ गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, होप यू अंडरस्टैंड दिस,
then third row and second column, ये वाली. तो 0 into minus sin y 0, 0 into cos y 0, 1 into 0 0. तो यहाँ पे भी 0 plus 0 plus 0. Then this is third row third column, 0 into 0 plus 0 into 0 plus 1 into 1. तो यहाँ पे 1. ठीक है. तो अब देखो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, ध्यान से देखो. जस्ट लुक एट आवर आंसर. आवर आंसर इज, अभी आपको कितनी एडिशन फॉर्मूला याद है वो देखने वाली बात है. cos x cos y माइनस sin x sin y, तो वो हो जाएगा cos of x plus y. I hope you understand or remember this. You have to recall the formulas. फिर ये देखो sin x cos y plus cos x sin y, तो वो है sin of x plus y. ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, सब एडिशन फॉर्मूला है. sin of x plus y is sin x cos y plus cos x sin y. ये तो जीरो ऑलरेडी है ही. दिस थिंग बोथ आर माइनस, सो जस्ट टेक माइनस कॉमन. माइनस को कॉमन निकाल के फिर बोलिए, तो क्या बोलोगे आप, देखो ध्यान से. माइनस को बाहर ले लो, तो cos x sin y प्लस sin x cos y. ठीक है, राइट. तो माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया. अब cos x sin y plus sin x cos y will be again sin of x plus y. थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस कॉमन निकाल दिया. अब इसका आंसर देखो, माइनस को भूल जाओ. इसका आंसर देखो, sin x cos y, ये रहा sin x cos y प्लस cos x sin y, तो प्लस cos x sin, माइनस इज ऑलरेडी कॉमन. अब सिमिलरली यहाँ पर देखो, तो इसमें क्या होगा, cos x cos y प्लस है माइनस sin x sin y. तो ये प्लस वाली को पहले बोलो, माइनस वाली को बाद में बोलो. तो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये रहा सेम cos x cos y माइनस sin x sin y. तो क्या हो गया, cos of x प्लस y. ठीक है. फिर ये तो जीरो, दिस इज 0 0 1. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये किसको समझ पड़ेगा, जिसने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है. ठीक से पढ़ा है नहीं बोल रहा हूं मैं, पढ़ा है, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एंड ऑल दिस पेंडेमिक. ठीक है, आप लोगों ने बहुत मजे किए, बहुत ही, सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा आपने मजे किए. अब वो सारे मजे अब यहाँ पे निकलेंगे, देखना. जितना भी, अगर अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो पंचोली सर ने पढ़ाया था, उतना भी अगर मटेरियल भी आपके पास पड़ा है ना, तो एक बार फिर से उसमें से जस्ट गो थ्रू दैट. नहीं तो इतना मुश्किल पढ़ने वाला है, अगर आप नहीं पढ़े हो ना, आपको सोच भी नहीं सकते आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है 12th में. अभी से बोल के रखता हूँ. अभी तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. तब पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है. हाँ, आई एम जस्ट वार्निंग. ओके. अच्छा, अब देखो ये जो हमारा आंसर आया ना, अभी थोड़ा ध्यान से देखो आप. हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, एफ एक्स इंटू एफ वाई. ठीक है. अब ये जो आंसर आया ना, थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे कॉस एक्स, एक्स के बदले एक्स प्लस वाई आ गया, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. 0 0 1, 0 0 1 तो है ही, दिस इज 0 0, वो भी है. ये साइन एक्स, कैन यू सी दैट, साइन एक्स कॉस एक्स, वो क्या हो गया, sin x plus y cos x plus y. Means what is happening, the whole matrix is of the same form, but this is fx. तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया f of x plus y. ठीक है, मतलब जहां पर x है ना, x is replaced by x plus y. ठीक है, यहाँ पे अगर आप x plus y लिखोगे तो जहां जहां भी x है ना, that x will be replaced by x plus y. Hope you understand this. And this is nothing but the RHS. Okay, ये हो गया result proof. और they ask the question that show that हमारा result हो गया proof. Clear?
होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना? ओके राइट। तो ये 13 हो गया। उसके बाद एक और सम हम करेंगे आज जिसमें प्रोडक्ट का यूज आता है, ठीक है? तो सपोज आई एम गोइंग नाउ फॉर द सम नंबर 50, 15 सम, 14th आप ट्राई। जो मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा मत समझना कि वो नहीं करने। व्हेन यू आर राइटिंग द नोटबुक, असाइनमेंट बुक, ओके, योर ओन सेक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चेक करूंगा, मुझे चेक करनी होगी तो मैं बोलूंगा कि जस्ट गिव इट टू मी, आके दे जाओ, ठीक है? मैं कभी भी मांगूंगा, लेकिन दिखाने के लिए कॉपी करने का मतलब नहीं है। आप सारे के सारे खुद, ओके, ऑनेस्टली करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अभी 15 सम में मैट्रिक्स ए गिवन is this 201, 213 and 1 minus 10, ठीक है? Right? Now what is to prove? All of you just look in the textbook. Let's ask the question that find. The question is find. Prove नहीं करना है लेकिन find करना है. What is to find? A square minus 5a plus 6i. ये हमको फाइंड करना है, ठीक है? तो अभी मैंने आज चैप्टर की शुरुआत, आज वीडियो किया स्टार्ट, तो मैंने एक नोट दिया था, वो है ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए, ठीक है? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए, ए इंटू ए मीन्स 201, 213, 1 minus 0 multiplied by 201, 213, 1 minus 10, ओके राइट? तो अभी इसका पहले मल्टीप्लाई किया हम, जस्ट अ प्रोडक्ट, सो मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना, 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा, ठीक है? 2 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1, सो माइनस 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 0 3 जा 0, 1 0 जा 0, तो ये हो गया फर्स्ट रो। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3 1 जा, सो 3, ठीक है राइट? उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 2 0 जा 0 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड प्लस 3 इंटू माइनस 1, सो माइनस आएगी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 एंड प्लस 3 0 जा 0, ये सेकंड रो हो गई। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है और ग्रिप नहीं है तो आप देखो कितना टाइम जाएगा। ये तो अभी मैं आपको बताने के लिए ये सब शो कर रहा हूँ। अगर इसमें ये आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे ना तो भी एग्जाम में कोई मैं मार्क्स नहीं काटूंगा, कोई भी मार्क्स कट नहीं करेंगे। बट वो आप कब कर सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंटली अच्छे से प्रैक्टिस है तब, तभी आपका टाइम बचेगा, यू कैन सेव योर टाइम। अदरवाइज तुम देखो ये कितना टाइम जा रहा है कि नहीं, राइट? सो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2 प्लस माइनस 1 2 जा, सो माइनस 2 एंड प्लस 0 0 1 जा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 0 जा 0 माइनस 1 1 जा
-1 and 0 -1. 0 0 सॉरी 0, ठीक है, 0 multiplied by -1, 0. Then third row, third column, third row, third column. So 1 into 1 plus -1 into 3, ठीक है, so -3 plus 0 into 0, 0. So ultimately आपको क्या मिला, a square मिला. क्या हुआ a square, देखो 4 plus 1 5 minus 1 फिर 2. This 6 plus 3 9. This is 1 minus 3 minus 2. 2 plus 3 5. 2 minus 2 0. Then this is -1 and 1 minus 3 minus 2. तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर. क्या हुआ दोस्तों, a स्क्वायर मिला, ठीक है ना. अभी हमको फाइंड करना ये a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. व्हाट इज i? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वो ये 3/3 है ना, सो 3/3 लेना है आइडेंटिटी. 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है. सो नाउ अभी आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, अब ये a स्क्वायर हमको मिला है ऑलरेडी, वो यहाँ पे लिखो, मतलब 5 minus 1 2, 9 minus 2 5, 6 minus 1 minus 2, ठीक है. 6 का सॉरी 0 0 minus 1 minus 2, सॉरी नॉट 6, ठीक है. सो 5 minus 1 2, 9 minus 0 minus 1 minus 2, ये a स्क्वायर आ गया, ठीक है. -5a, ठीक है, -5a. ये मैट्रिक्स जो हमको दिया हुआ है वो 2 0 1 2 1 3 एंड 1 minus 1 0, ठीक है. एंड प्लस 6i, प्लस 6i, i is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन. अभी हमको क्या करना है आगे दोस्तों, ये -5 को अंदर ले लो, बार प्लस बना दो, मतलब ये सारे एलिमेंट्स को 5 से -5 से मल्टीप्लाई कर दो. ये 6 भी अंदर जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6. तो आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप विल बी द आंसर. तो वो स्टेप जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों. हाँ, आई एम जस्ट लिविंग इट फॉर यू. जस्ट डू इट इन योर होमवर्क रिमेनिंग थिंग. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, राइट. सो जैसे हमने 15 सम किया ना दोस्तों, exactly as 15 sum we have done, we can or you can try sum number 16 also. 16 sum में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. 16 में जस्ट टेक्स्ट बुक में देखो, तो उसमें प्रूव दैट, मैं सम नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग द सम. प्रूव दैट करके यू है e क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 लिखा है वहां पे. वो टेक्स्ट बुक का भी प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान से देखना. टेक्स्ट बुक में 0 प्रिंट किया है, वो गलत है. ओके, अब प्लीज उसको करेक्ट करो और कैपिटल O कर दो, या तो दूसरा क्या कर दो, ज्यू कर दो, ठीक है. हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक में, नई टेक्स्ट बुक में सपोज वो करेक्ट होके आया है तो बात अलग है. अदरवाइज अब यहाँ पर देखो, तो ये 0 लिखा हुआ है, ये गलत है. एक्चुअली यहाँ पर उनको ब्रैकेट करना चाहिए ऐसे. अब ये सही है, दिस इज ओके, और दे शुड प्रिंट इट लाइक कैपिटल O. तो ये भाई ये भी ओके है ना. तो बी केयरफुल, टेक्स्ट बुक में इसका थोड़ा इतना करेक्शन कर देना है.
ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी इसमें खाली हिंट मैं दे रहा हूँ। हिंट देखो, इसमें ए क्यूब भी आया, ए स्क्वायर भी आया, तो व्हाट विल बी द हिंट? पहले क्या करो आप, फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। वो फाइंड करने के बाद देन यू फाइंड ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर फाइंड करो, ए क्यूब फाइंड करो, and then put all these values here, and then you can prove LHS equal to RHS, LHS equal to RHS। तो ये भी आपको होमवर्क में ट्राई करना होगा दोस्तों, ये सब भी आप ट्राई करना, ठीक है ना? राइट, इज दैट क्लियर? होप यू आर गेटिंग दिस क्लियर। हाँ, तो देखो अभी जो भी सब बाकी है ना, तो इसमें से अभी है ना मैट्रिसेस में से right now we are not doing the problem sums. Like if you see the textbook, I am not trying, or you also please don't try sum number 19 and 20। 19 20 जो है ना, वो अभी मत करना, वो प्रॉब्लम सम्स को छोड़ दो। आप सम नंबर 18 तक करना, उसके बाद 21 22 जो एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू भी आप ट्राई करना होमवर्क में। ओके, होमवर्क में क्या होगा? रिमेनिंग सम्स होमवर्क, फिनिश द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 आप फिनिश करो। कौन से सम लोगे आप? एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, इसको छोड़ के बाकी के सम्स, और अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। होप यू आर क्लियर इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाउ दोस्तों, and in the next lecture we will go further with the new theory topics of this chapter, right? Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.